धन्यवाद यीशु। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति Praise the Lord. Praise the प्रभु की Lord. स्तुति Glory to God. Glory to ईश्वर को God. सारी Glory महिमा to दे। God. Glory to God. ईश्वर Glory पिता to आपको महिमा दे। Hallelujah. Hallelujah. स्तोत्र, Hallelujah. 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 हालेलुया Hallelujah. Praise the Lord. Praise the हालेलुया। Lord. Praise the Lord. धन्यवाद Glory यीशु। to God. Glory to God. धन्यवाद Glory यीशु। to God. Glory to God. Thank you Glory to God. Jesus। Hallelujah. Hallelujah. यीशु। Hallelujah. Hallelujah. Glory glory Hallelujah. glory 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 Hallelujah, glory to hallelujah, Jesus। hallelujah. Victory in the blood of Lord Jesus Christ. Victory in the blood of Lord Jesus Christ. Victory in the blood of Lord Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. Praise ye the Lord. 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 Hallelujah. 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 धन्यवाद यीशु धन्यवाद Glory यीशु to God. Glory Thank you to God. Glory to Jesus God. Glory to God. Yeshua. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Praise ye the Jesus. Lord. Thank you, Praise ye the Lord. Jesus. Praise Thank ye the you, Lord. Jesus. Thank धन्यवाद you, यीशु Jesus. धन्यवाद Thank you, यीशु Jesus. Thank you, धन्यवाद Jesus. यीशु धन्यवाद Hallelujah. यीशु Hallelujah. Hallelujah. Praise the Hallelujah. Lord. Praise the Lord. Praise प्रभु the आपको Lord. Praise the धन्यवाद Lord. धन्यवाद यीशु Glory to God. Hallelujah. प्रभु की स्तुति हो Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो Dear people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग this morning once again we welcome each one of you in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ for this session. आज एक बार फिर से इस नए दिन में हम आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के धन्य और सामर्थी नाम से अभिवादन करते हैं आज के इस ऑनलाइन सेशन में। This is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. आज का यह दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित और मग्न हों। Yes, we are rejoicing seeing the goodness of हम God. परमेश्वर की भलाई को देखकर आनंदित हैं। We are rejoicing seeing the good deeds that God Almighty has been doing in our lives and through our lives. हम आनंदित हैं उन बातों को देखकर जो प्रभु आपके और मेरे जीवनों में करते आए हैं और कर रहे हैं। And this is what even He has promised to His children. और यही तो उसने अपने लोगों से अपने बच्चों से प्रतिज्ञा भी की That है I will be your father. कि मैं तुम्हारा पिता होऊंगा You will be my और तुम children. मेरी संतान होगे। Hallelujah. Hallelujah. How good to know this that God Almighty is our Abba, our Father. कितनी आनंद की बात है ये जानना कि वो सर्वशक्तिमान खुदावन आपका और मेरा अब्बा पिता है And He cares for और वो us. मेरी सुधि लेता है हमारी सुधि लेता है। Each day He brings His blessings and He cares for us in our lives. हर दिन अपनी आशीषों को हम पर उंडेलता है और हमारे जीवनों की सुधि रखता है। Each second that we move ahead in our lives, God is there to care and to protect and to provide for us. हर एक क्षण जब आप और मैं एक एक क्षण में आगे बढ़ते हैं अपने जीवनों में परमेश्वर वहां पे पहले से हैं ये आपकी और मेरे लिए प्रबंध कर सके हमें सुरक्षित रख सके और हमें संभाल सके। Because the word of God says He is our Father God. परमेश्वर का कलाम कहता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा अब्बा पिता है And that's why He cares for us. और इसलिए वो आपकी और मेरी स्तुति रखता है। And that is why we should rejoice each day. और इसीलिए आपको और मुझे अनिवार्य है कि हम हर एक दिन आनंदित रहे। Hallelujah. Hallelujah. I want to encourage you, dear people of आपको God. उत्साहित करते हैं प्रभु यीशु मसीह We में। want each one of thy children, God. I pray that each one of thy children must be encouraged today. आमीन। हम दुआ करते हैं कि हर एक यहाँ पे मौजूद हमारे साथ जुड़े हर एक लोग परमेश्वर के संतान आज प्रभु यीशु के नाम से उत्साहित होने पाए। Because so many discouragements and hopeless situations, it comes in people's life. कई प्रकार की निराशाएं, डिसअपॉइंटमेंट्स और नाना प्रकार की ऐसी संकट सकेती में जब लोग फंसते हैं। But God is there to deliver. धन्यवाद हो कि सारी बातों के मध्य में भी हमारे पास हमारा परमेश्वर है जो आपको और मुझे छुड़ाता है। God the Father is available to deliver. वो जीवित परमेश्वर का दास सदैव हमारे साथ है हमें छुटकारा देने के That's लिए। why we should rejoice in Him. और इसलिए हमें उसमें आनंद मनाना है। We should abide in Him. उसमें बने रहना है। And we should always
say that God, let thy will be done in my और life. कहते रहना है कि प्रभु तेरी ही मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। With this word of encouragement, dear people of इस God, उत्साह के वचन के साथ मेरे प्रियो, let us move ahead in this session आइए आगे बढ़ेंगे आज के सेशन में and believe that today once again God the Father is going to talk with you. और निश्चय रखिए, आशा रखिए कि खुदावन आपसे बात Yes, we करेंगे। must have that heart with full of expectation that God is going to perform His miracles once again in my life and through my life. इस बात की अपेक्षा निश्चय हमारे अंदर बनी रहने पाए हर एक समय कि परमेश्वर मेरे जीवन से, मेरे जीवन में, मेरे जीवन के द्वारा अद्भुत काम करेंगे। Whosoever comes to Jesus Christ when we read in the Holy Bible, जब पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं, जो कोई भी प्रभु यीशु के पास आया, they come with expected heart. वो अपेक्षा के साथ आए। In their heart, they have expectation that only Jesus, the Messiah, can do it for me. उनके अंदर ये अपेक्षा थी कि हाँ यीशु ही मसीहा है जो मेरे लिए कर सकता Today है। also when we gather, as a fellowship, as a church, जब आज हम इकट्ठा होते हैं, संगति करते हैं, as a church or as a believers, when we gather together, विश्वासी की संगति कहिए, कलीसिया कहिए, we should accept this. आपको और मुझे इस बात को We should expect this, that Jesus is there to perform His wonders and miracles in my life. आपको और मुझे इस बात की अपेक्षा रखनी है हर एक पल कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में अद्भुत काम करेंगे Only He can do it, nobody else. और केवल यीशु ही ये कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। So I firmly believe that in my life today God is going to perform once again His supernatural miracles. आमीन। मैं आज विश्वास करता हूँ अपने लिए कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आज अद्भुत काम करेंगे। Today once again I believe आज एक बार फिर से मैं विश्वास करता हूँ, for this day आज इस दिन के लिए विश्वास करता हूँ फिर से that my God the Father is available to perform His wonders and His miracles in my life and through my कि मेरा life. परमेश्वर पिता मेरे साथ है कि मेरे जीवन में और मेरे जीवन के द्वारा अद्भुत काम करे। Hallelujah! हालेलुया, Praise the प्रभु की Lord. स्तुति हो। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, आमीन। जिसने पृथ्वी Yes, बनाया, He's the maker of heaven and earth, and He is with us. आकाश Let us rejoice in Him and worship Him together for the glory of God. पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु Yes, He is the Almighty, वो all-powerful God. यहोवा And हमारे He is with संग each one संग of us. है। Hallelujah. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला, ओ समुद्र को जिसने दो भागा, He's the way जंगल में से मार को निकाला, जो वायदों को करता है पूरा, And He's a promise वो keeping God. यहोवा हमारे संग Hallelujah. संग And He is with है। us. Jesus is with जो us. वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। बोलिए, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है,
याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। Glory, glory, glory to महिमा Jesus. देते हैं, प्रभु यीशु मसीह को महिमा देते हैं। Yes, hallelujah. हालेलुया, He is the Lord. वो ही प्रभु है, Jesus is the Lord. यीशु मसीह ही प्रभु है, And He is with us. और वो हमारे साथ है। Yes, the creator and the possessor of the heavens and the earth and the seas and everything therein, seen and unseen. स्वर्गों, पृथ्वी और उसमें की सारी देखी अनदेखी चीजों को बनाने वाला परमेश्वर, Oh, the Almighty, all-powerful वो God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, He is with us. वो हमारे साथ है। The waymaker, वो परमेश्वर जो मार्ग तैयार करता the है, promise keeper. परमेश्वर जो वायदों का परमेश्वर है, Oh, the Lord who says, I will never leave you nor forsake you. वो परमेश्वर जो कहता है ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना तुम्हें कभी त्यागूंगा। Lord who is our Abba Father. वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो हमारा अब्बा पिता है, The Lord who is our best friend. वो प्रभु जो हमारा उत्तम मित्र है, Yes, the Lord who is our husbandman. वो जो हमारा दुल्हा है, Yes, the Lord who is the Messiah. वो जो मसीहा The है, Lord and a Savior. वो मसीह यीशु हमारा उद्धार करता He है, is with us. वो हमारे साथ है। Come on, everyone, just rejoice in it. आइए मिलकर हम उसमें आनंद मनाएं। Hallelujah. हालेलुया, Roba shokotoro roba. Zekatara roba shotoro roba. सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। Yes, the Lord of hosts. वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, Raba shindara वो kaba. यहोवा हमारे संग संग है। Today he is saying वो आज कह रहा है, that my dear beloved daughter, मेरी प्रिय बेटी, my dear beloved son, प्रिय बेटे, don't cry anymore. अब और अधिक मत रो। Oh, I know that you are alone. मैं जानता हूँ कि तू अकेला है, But right now, परंतु इस समय the Spirit of the Lord is going to visit you. परमेश्वर का आत्मा तुझसे मुलाकात करने आ The रहा है। Holy Spirit, पवित्र आत्मा आ रहा Spirit है, of Jesus himself. स्वयं प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आ रहा Right है। now, the Holy Spirit is coming inside you. इसी क्षण पवित्र आत्मा आपके भीतर आ रहा है। Oh, rakaba shotoro lalaba. From this moment onward, इस क्षण से लेकर अब आगे को, oh, you will never be alone. अब आप आगे को अकेले नहीं रहेंगे। There's no need for you to shed any more tears. अब जरूरी नहीं है आपके लिए कि अब आप आगे को आंसू बहाएं। Holy Spirit is wiping away all your tears. पवित्र आत्मा आज की सुबह आपके आंसुओं को पोंछ रहे हैं। Oh, someone is very old. कोई बहुत ही वृद्ध अवस्था में है, And you're saying, dear woman, that even though I have a big family, I feel alone. और आप प्रिय महिला, आप वृद्ध हैं और आप ऐसा कह रही हैं कि मेरे बड़ा परिवार है, लोग हैं।
But still I feel alone. परंतु तो भी मैं अकेला महसूस करती हूँ। But right now, परंतु इस क्षण call on to Jesus. प्रभु यीशु मसीह को पुकारिए, Call on to Jesus. प्रभु यीशु नासरी को पुकारिए, He's coming. वो आ रहा है, Jesus is coming. यीशु आ रहा है, Your Lord is coming. आपका प्रभु आ रहा Your है, help is coming. आपकी सहायता आ रही है, Your friend is coming. वो आपका उत्तम मित्र है, वो आ रहा Your है, Savior is coming. आपका उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह आ रहा He's है। knocking at the door of young people this morning. जवानों, आपके दरवाजे में खड़े होकर वो खटखटा रहा He's है, knocking at the door of your heart. वो आपके हृदय के दरवाजे में खड़ा होकर खटखटाता है, My dear sons and daughters, कहता है मेरी प्रिय बेटी, मेरे प्रिय बेटे, open the इस door. दरवाजे को मेरे लिए खोल, Open the door for me. मेरे लिए इस दरवाजे को खोल, See, I'm here for मैं you. यहाँ तेरे वास्ते हूँ, I have come for you मैं तेरे लिए यहाँ आया हूँ, because I love you. क्योंकि मैं तुझसे बेनतिहा प्रेम रखता I हूँ, care for मैं you. तेरी परवाह करता I हूँ, want to become your best friend. मैं आज से अब आगे को तेरा उत्तम मित्र बनना चाहता I हूँ, will lead you. मैं तेरी अगुवाई करूंगा, I'll bless you. मैं तुझे आशीष दूंगा, I'll protect you. मैं तेरी सुरक्षा करूंगा, Oh, I will fulfill your heart desire. और मैं तेरे मनोरथों को भी पूरा करूंगा। Do not go and take the evil ways, he's saying. वो कहता है कि आगे को तुम जाकर कोई भी बुरे मार्ग में मत चलना, But परंतु open the door of your heart for me, Jesus परंतु यीशु says. कहते हैं कि अपने हृदय को के दरवाजे को मेरे लिए खोल, I'll come and live there. मैं आके वहां वास करूंगा, I'll have fellowship with you. मैं तेरे साथ में संगति Your करूंगा, life will be transformed. और तेरा जीवन बदल Your जाएगा, destiny will be changed. तेरी मंजिल बदल जाएगी। Oh, Jesus is here this morning. आज की सुबह प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे मौजूद हैं, He's touching and transforming वो lives. आपको स्पर्श कर रहे हैं, आपके जीवन को तब्दील कर रहे हैं। Many a time, कई बार we only seek healing and miracles and signs and prophetic words. हम चिन्ह चमत्कार और अद्भुत काम और भविष्यद्वक्ताई के वचनों को ही हम सुनना और पाना चाहते But हैं, right now I'm hearing from the Holy Spirit. परंतु आज की सुबह मैं पवित्र आत्मा से इस बात को सुन पा रही हूँ। Desire Jesus. प्रभु यीशु मसीह की लालसा करें, Only desire Jesus. सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की लालसा करें। This is the moment. ये वो क्षण है, Jesus is coming to visit you. यीशु आपसे मुलाकात करने आ रहे हैं, He is here for you. वो यहाँ पे आपके लिए हैं। When He will come, जब वो आएंगे, healing will follow you. चमत्कार और चंगाई भी बहने लगेगी, Signs and wonders will follow you. चिन्ह चमत्कार आपके पीछे पीछे चलने Blessings लगेंगे, will overtake you. आशीषें आपके ऊपर बेपरिमाण मात्रा में उतारी This जाएंगी। morning desire nothing else but Jesus आज की alone. सुबह और किसी बात की नहीं, परंतु यीशु की लालसा करें। Say, Jesus, come near to me. बोलिए, यीशु मेरे करीब आ जाइए, Jesus, come near to me. यीशु मेरे करीब आ जाइए, Jesus, I want to listen from you, Lord. यीशु मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, सुनना Jesus, चाहता I हूँ। want to touch you. प्रभु यीशु मसीह मैं आपको स्पर्श करना The चाहता Lord हूँ। is reminding me of that woman who was having an issue of blood for 12 long years. परमेश्वर मुझे स्मरण दिला रहे हैं उस स्त्री के विषय में जिसको 12 वर्षों से, एक लंबे और वर्षों से लहू बहने की बीमारी थी। Oh, one after another, she went through disappointments and disappointments and disappointments. एक के बाद एक वो निराशा से, हताशा से और आशा रहित परिस्थितियों से गुजरी। She spent her everything, उसने अपना सब कुछ खर्च कर दिया, but never became whole. तो भी वो चंगी नहीं हो Even पाई। the word of God says that her situation became worse. और कलाम में तो ये भी लिखा हुआ है कि उसका सब कुछ खर्च करने के बाद में भी वो चंगी नहीं हो पाई और उसकी परिस्थिति और भी बदतर हो गई। She went through long time of suffering. वो बहुत ही लंबी पीड़ा से होके गुजरी। She went through long period of disappointments in her वो life. निराशा के एक लंबे क्षण से होके गुजरी, But परंतु she didn't give up. उसने कभी भी हार नहीं She मानी, didn't give up on her faith. उसने हियाव नहीं छोड़ी, अपने विश्वास को वो थामे रही। When she heard of Jesus, जब उसने प्रभु यीशु मसीह के विषय में सुना, yes, when she heard of Jesus, just as you are hearing about Jesus right now, जैसे आज इस क्षण आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुन रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही उसने भी यीशु के बारे में सुना। she gathered
gathered up all her little strength, what was left in और her. जो कुछ भी उसके शरीर में थोड़ा सब बल बचा था उसने उसको समेटा। She gathered all her hope. I think little was left. उसने जो उसके पास थोड़ी सी आशा बची होगी उसने उस आशा को समेटा। She saw her track at the past. It was a failure. It was a disappointment all the time. और उसने अपने अतीत को जब मुड़ के देखी होगी तो उसने पाया होगा मैं तो अतीत में निराश, हताश और आशा रहित रही हूँ। But this time, परंतु अब आगे से something new is happening in her life. कुछ तो उसके जीवन में अनोखा हो रहा She है। heard of Jesus, उसने यीशु के बारे में सुन ली है and Jesus came near to her. और यीशु उसके निकट आ गए। The Lord, the Savior, came near to her. प्रभु उद्धार करता उसके निकट आ She गए। started desiring Jesus. उसने यीशु की लालसा की। Hallelujah. हालेलुया। And we all know और हम सब इस बात को जानते हैं that she touched the hem of Jesus' garment and became whole. उसने यीशु के वस्त्र को छू ली और चंगी हो गई। I want to tell you this morning आज की सुबह मैं आपको बता दूं that desire Jesus. यीशु की ही लालसा करें। Healing will automatically flow in your body. जब आप यीशु की ही लालसा करेंगे चंगाई आपके शरीर में बहेगी। When Jesus will enter in your heart, जब यीशु आपके हृदय में प्रवेश करेंगे depression will flee away. हर एक प्रकार का अवसाद आपको छोड़कर भाग All जाएगा। black magic curses will be destroyed from your life and family. आपके जीवन और परिवारों से हर एक प्रकार का काला जादू दुष्टात्मा का प्रकोप हट जाएगा। When Jesus will enter in your heart, जब यीशु आपके हृदय में प्रवेश करेंगे fears will run away. हर एक प्रकार का डर और भय भाग You जाएगा। will receive the power from above. You will receive the Spirit of God. आप स्वर्ग से सामर्थ को पाएंगे, परमेश्वर की आत्मा को पाएंगे। Get ready. इसलिए तैयार हो जाइए, Jesus is coming. यीशु आ रहा है। Call unto him this morning. आज की सुबह यीशु को पुकारें। Oh, Rabba Shekhata Rabba. Thank you, Lord, that you are moving here. धन्यवाद प्रभु आप यहाँ पे आप विचरण कर रहे हैं। Thank you, Lord, for you are visiting many today. धन्यवाद प्रभु कि आप कई लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus, that you are so good to us. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह कि आप हमारे साथ में कितने भले प्रभु हैं। Lord, as we are going ahead to listen from your word and to learn more and more from you. पिता अब आगे को जैसे कि हम आपके वचन से सुनने जा रहे हैं और सीखने जा रहे हैं। Help us, Lord, to expect you, पिता हमारी मदद करिए कि हम आपसे बड़ी बातों की अपेक्षा to करें। desire, my Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह की लालसा लगा के रखें to listen from him. और उससे ही सुने। Lord, bless your children. प्रभु आप अपने बच्चों को आशीष In दीजिएगा। Jesus' name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन आमीन हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Dear people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के get लोगों, ready with your Bible, pen and diary. आइए अपनी बाइबल को लेकर के पेन और डायरी को लेकर हम तैयार हो जाएं। Because God is going to talk with you once क्योंकि again. परमेश्वर यहाँ पर एक बार फिर से आज आपसे बोलेंगे और बातचीत I करेंगे। firmly believe मैं निश्चय विश्वास that करता you are not going to go from this empty-handed. हूँ आप इस स्थान से खाली हाथ नहीं लौटे। Surely you are going to receive something from God this निश्चय आप morning. प्रभु से अपनी उस बात को जो आप चाहते हैं वो पाएंगे। Every individual, even who have joined with us live on Facebook, और एक लोग जो हमारे साथ फेसबुक में लाइव हैं, God is going to talk with you once again, dear sister. निश्चय आपसे प्रभु आज बात करेंगे मेरी बहन। You will be touched by the power of the Holy और आप पवित्र Spirit. आत्मा के द्वारा स्पर्श किए And जाएंगे। every individual who will watch us later, और हर एक जो बाद में भी सुनेंगे they will be also be transformed by the power of the Holy और वो भी Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ से आशीषित होंगे, बदले Because जाएंगे। I am expecting great things from Jesus. क्योंकि मैं अपने यीशु से बड़ी बातों की अपेक्षा कर रहा हूँ। I am expecting mighty works of the Lord to be performed in each one of मैं life. विश्वास करता हूँ आप सबों के जीवन में परमेश्वर अपने बड़े आश्चर्य कर्म को करेंगे। Hallelujah. Hallelujah. Know that salvation, glory and power belongs to our निश्चय God. जानिए कि उद्धार, पराक्रम और महिमा परमेश्वर की ही For the है। Lord God Almighty who reigns forever. महान परमेश्वर सदा सदा सर्वदा राज्य करता है। Once again I give all the glory and honor to my Lord Jesus Christ for his
this blessed day, आज एक बार फिर से इस नए दिन के लिए मैं सारा आदर महिमा जलाल अपने खुदावन यीशु where को once देता हूं। again we are gathered, to glorify Him, जहाँ प्रभु के अनुग्रह से हम इकट्ठा हो पाए हैं ताकि खुदावन की महिमा कर सके, to worship Him, उसकी आराधना कर सके, to pray to Him, उससे दुआ कर सके and to learn from और His living word उससे ही उसके जीवित वचन से सीख सके। with expected heart. हालेलुया, अपेक्षा का हृदय रखिए। Dear people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर, before we move ahead into our main sermon, इससे पहले कि हम अपने मेन संदेश में जाएं, God is putting something in my heart that I want to share with you. एक बात है जो प्रभु मेरे हृदय में डाल रहे हैं जो मैं आपके साथ बांटना I चाहूंगा। want to encourage you saying this. मैं आपको इस बात को कहकर एक बार फिर से उत्साहित करूंगा। Before we go into our main sermon, मुख्य संदेश में आगे बढ़ने से पहले God is putting this in my heart for you, dear people of God. प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रभु मेरे हृदय में आपके लिए ये बात डाल रहे हैं। I want to tell you that God the Father who never ever changes. मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको स्मरण दिलाता हूँ कि पिता परमेश्वर कभी नहीं बदलते। God Almighty, our Abba Father, He never changes. ओ ज़रावत सर्वशक्तिमान आपका मेरा खुदावन हमारा अब्बा पिता कभी नहीं बदलता। Can you please repeat this after me? क्या आप मेरे साथ कह सकते हैं? My Father God never changes. मेरा परमेश्वर पिता कभी नहीं बदलता। Please repeat this. आप दोहरा सकते हैं हमारे पीछे। My Father God never changes. मेरा पिता परमेश्वर कभी नहीं बदलता। Yes, God the Father never changes. परमेश्वर पिता कभी नहीं बदलते। The Holy Bible says पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, in Malachi chapter 3 verse 6, आप पढ़ेंगे मलाकी की पुस्तक उसका अध्याय 3 वचन 6, it's mentioned there, वहां पर यूं लिखा है, I the Lord do not change. ओ मैं परमेश्वर यहोवा कभी नहीं बदलता। I, the Lord says, I, the Lord never और changes. परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं कि मैं परमेश्वर कभी नहीं बदलता। Hallelujah. Hallelujah. What assurance that we have. और कितनी सुनिश्चितता है प्रभु में हमारे पास। God, the Father, He's saying to us this morning, ओ जीवित खुदावन प्रभु परमेश्वर पिता आपसे मुझसे सुबह कहते हैं, my dear children, मेरे प्रिय बच्चों, don't need to be worried. ओ चिंता ना करो, I am your Abba Father, God Almighty. मैं तुम्हारा अब्बा पिता हूँ I never change. और मैं कभी नहीं बदलता। I am same yesterday, today and मैं तो forever. कल आज और सर्वदा एक सा हूँ। Time can change. वो समय बदलते हैं God do not change. परंतु परमेश्वर नहीं बदलता। Season changes. मौसम बदल जाते हैं God do not पर change. परमेश्वर कभी नहीं बदलते। Years changes. वो सालों साल बदलते रहते हैं But God never परंतु हमारा changes. परमेश्वर कभी नहीं बदलता। People can change. लोग बदल जाते हैं God cannot परंतु change. परमेश्वर नहीं बदलता। Our loved ones may change. हमारे प्रिय भी बदल जाते हैं But God the Father never लेकिन changes. परमेश्वर कभी नहीं बदलता। Our friends may change. हमारे मित्र बदल जाते हैं God never परंतु changes. परमेश्वर कभी नहीं बदलता। Even many times कई बार we change. हम खुद बदल जाते हैं But God never परंतु changes. परमेश्वर नहीं बदलता। My dear people of मेरे God, प्रिय परमेश्वर के I लोगों, want to encourage this. मैं आपको कहकर उत्साहित करता हूँ, Always keep this in your heart. अपने हृदय में इस बात को बसने दें। God whom we serve, महान परमेश्वर जिसकी आप में आराधना और सेवा करते हैं, He never ever वो changes. परमेश्वर कभी नहीं बदलता। Once again, can you please repeat this after me? मेरे साथ दोहराइए एक बार फिर, My Father God never changes. मेरा परमेश्वर पिता कभी नहीं बदलता। My God the Father never ever changes. मेरा परमेश्वर पिता कभी नहीं बदलता Because He never changes. और क्योंकि वो कभी नहीं बदलता, His words never उसके changes. वचन नहीं बदलते, And His promises never उसकी changes. प्रतिज्ञाएं नहीं बदलती। Hallelujah. हालेलुया। That's why we should rejoice when I'm sharing this with you. और इसीलिए हमें आनंद बनाना है हर एक क्षण जब मैं आपको वचन से उत्साहित करता हूं। God never changes. परमेश्वर कभी नहीं बदलता, His promises never उसकी change. प्रतिज्ञाएं नहीं बदलती, His words never उसका जीवित changes. कलाम कभी नहीं बदलता And that's why और इसलिए we can trust Him always. उसमें हम निरंतर हर समय भरोसा रख सकते हैं Yes, we can trust God always. और इसलिए हम खुदावन पर हर समय भरोसा लगा सकते हैं। We can trust Jesus always. हम खुदावन पर हर समय भरोसा रख सकते We हैं। can trust Jesus always. हम अपने प्रभु यीशु मसीह पर सदैव भरोसा रख सकते
सकते We हैं। can trust the Holy Spirit always. हम पवित्र आत्मा पे सदा भरोसा रख सकते हैं। Ask me why. आप बोलिए क्यों, पूछिए। Why? Do you know why? आप जानते हैं क्यों? Because God the Father never क्योंकि मेरा changes. खुदावन परमेश्वर पिता कभी नहीं बदलता। He is the same yesterday, today, and वो forever. कल, आज और सर्वदा एक सा है। It is we who changes. हम बदल जाते हैं, God never changes. परमेश्वर नहीं बदलता। Dear people of God, मेरे प्रियो, this morning आज इस सुबह God has, last week God has put something in my heart. बीते सप्ताह प्रभु ने कुछ बातों को मेरे हृदय में डाला है, And that is what I'm going to share with you this और आज morning. इस सुबह मैं आपको उससे उत्साहित करूंगा, उसे आपके साथ And I बांटूंगा। firmly believe, और मैं निश्चय विश्वास करता हूँ this message is going to help you to grow in the Lord. और विश्वास करता हूँ कि इस संदेश के द्वारा आप प्रभु में उन्नति करेंगे। Yes, dear sister. हाँ मेरी बहन, Yes, dear brother. हाँ मेरे प्रिय If भाई, you have hunger and thirst for the trine God, अगर आपके पास खुदावन के लिए वो भूख और प्यास है, then this message is for you. ये संदेश आपके लिए है। If you want to be deeply rooted in Christ, and if you want to grow and be fruitful in Christ, अगर आप प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ना चाहते हैं और प्रभु यीशु मसीह में फलवंत होना चाहते then हैं, this message is for you. संदेश आज आपके लिए है। This morning God has put three things in my heart. तीन बातों को प्रभु ने आज सुबह मेरे हृदय में डाला है। In fact, I would say three words God, He has put in my heart. And तीन शब्दों को प्रभु ने मेरे मन में डाला है, I want to share with you. जो मैं आपके साथ बांटूंगा। And I firmly believe that these three things, these three words, surely help you to grow in the Lord. निश्चय विश्वास करता हूँ कि ये तीन बातें आपके जीवन में आपको आत्मिक उन्नति देंगी। As we just shared, before, जैसे कि हमने पहले शुरुआत में कहा, the people they're running behind the miracles and the prophetic words and the words of blessings, to be uttered for their lives. जैसे कि हमने पवित्र आत्मा ने अभी हमें इस बात को बताया कि कैसे हम कई बार सिर्फ चिन्ह चमत्कारों भविष्यवाणी के वचनों के पीछे, आशीषों के पीछे भागते हैं। Now at present also many people, they are running behind healing, behind prosperity, or behind word of blessings. और हर एक समय आज भी हम देखते हैं कि बहुत तेरे हैं जो केवल चिन्ह और चमत्कार और भविष्यवाणी और आशीषों की बातों को सुनना I चाहते am हैं। not saying these things are not good. मैं ये नहीं कह रहा कि ये बातें अच्छी नहीं, I am not saying that we should not be whole and healthy. मैं ये नहीं कह रहा कि आपको चंगा नहीं होना चाहिए, I'm not saying that we should not, gather wealth or be rich. और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप संपन्न ना हो, I'm not saying that nobody should prophesy over और मैं ये you. भी नहीं कह रहा कि हम भविष्यवाणी ना करें। What I'm trying to tell you is, मैं आपको क्या समझाना चाहता only हूँ, these things are not important. केवल सिर्फ यही बातें महत्वपूर्ण है ऐसा नहीं There है, is something beyond it. और इससे भी बढ़कर कुछ है, And that is और वो है to abide in Christ. यीशु मसीह में बने रहना, That is to trust Jesus. वो है परमेश्वर पे भरोसा And रखना that is to obey Jesus. और यीशु की आज्ञा को मानना। These three words that I want to share with ये you. तीन शब्द आज आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए जो आपसे बांट रहा हूँ। Trust the trine God. सबसे पहली बात, प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा रखें, Trust Jesus. प्रभु यीशु पे भरोसा रखें, Abide in Him यीशु में बने रहें and obey Him. और उसकी आज्ञा को माने। Trust Jesus. यीशु पे विश्वास करें, भरोसा रखें, Trust God. Believe God. परमेश्वर पे विश्वास करें, यीशु मसीह पे विश्वास करें, Abide in Him यीशु में ही बने रहें and obey Him. और यीशु की आज्ञा में चलें। This is very difficult. ये तीन बातें कठिन जान पड़ती Very हैं, difficult for believers. कठिन जान पड़ती है विश्वासियों के लिए भी। You tell them about the preaching of healing and what God has done for them. और जब आप चंगाई या फिर किसी आशीष या अच्छी आश्चर्य कर्मों की बातें करते हैं What God has done for them जो already, परमेश्वर ने उनके लिए कर दिया है, they rejoice. तो निश्चय हम आनंदित होते हैं। But पर when preacher or man and woman of God, they preach to tell them what they have to do for God. लेकिन जब कोई परमेश्वर का जन आपको ये कहता है कि सुनो तुम्हें प्रभु के लिए क्या करना है, They reject such messages. तो ऐसे संदेशों को अपनाना बड़ा कठिन होता है, हम उसे नकार देते हैं सिरे से। Yes, it is very difficult for believers, for Christians to adopt such messages that brings correction for their lives. ऐसे संदेश जहां पर आप अपने जीवन के लिए सुधार को लाएं और बदलाव लाएं, उन्हें स्वीकार करना कठिन है। Such messages that
help them to come near God, they reject such messages. ऐसे संदेश जहां आपको प्रभु यीशु मसीह की निकटता में आने के लिए कहा जाता है, वो आप कठिन जानते हैं। You know, this is very difficult for some people. ये हमारे लिए कईयों के लिए कठिन है। They want God to bless them. हम चाहते हैं कि प्रभु आशीष दे। You know, many people, they want God to prosper them. चाहते हैं कि प्रभु हमें संपन्न भी करे। But they don't want to come near God. They don't want to obey God. They don't want to trust God. They don't want to abide in God. लेकिन हम प्रभु पर भरोसा करना, उस पर ईमान लाना, उस पर बने रहना और उसकी आज्ञा को मानना नहीं It's चाहते। very difficult for some people. और कुछ लोगों के लिए तो बड़ा ही कठिन काम है। So this morning the Lord has put these 3 words in my heart, तो आज इन 3 बातों को जो प्रभु ने मेरे हृदय में डाला है, which is very, very vital for a believer. जो एक विश्वासी के लिए बहुत अनिवार्य है, Very, very vital. बहुत महत्वपूर्ण है। To trust Him, सबसे पहले यीशु पर भरोसा करना, to abide Him, यीशु पे बने रहना to obey Him. और यीशु की आज्ञा में चलना। If this morning the Lord speaks with you, अगर आज सुबह प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, pen down these 3 तो आप words. लिख सकते हैं इसे। Pen down these 3 इसे आप words. लिख लें You can comment it on comment box. और आप कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं। Trust, believe God. ट्रस्ट, बिलीव एंड ओबे। Trust, believe God. और यीशु मसीह में भरोसा करें, उस पर विश्वास करें, Abide in Him अबाइड उसमें बने रहें and obey Him. और ओबे उसकी आज्ञा को माने। Hallelujah. हालेलुया। If you have your Bible, you can open with me. आइए, अगर आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ निकालिए नीति वचन की पुस्तक। Proverbs chapter 3, verse number 5. आइए हम देखेंगे नीति वचन उसका अध्याय 3 वचन 5. 5। Proverbs chapter 3, verse number 5. नीति वचन 3 और 5 में यूं लिखा है। You can just pen down this in your आप diary. लिखते भी जाइए, अपने इन वचनों को आप बाद में मनन कर सकते It हैं। is written here, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. नीति वचन 3 और 5 कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। Yes, sometimes we believer, we try to trust, or we try to lean on our own understanding, our own intellectual, our own qualification and कई बार विश्वासी experiences. होने के बावजूद अपनी समझ, अपनी बुद्धि और अपने अनुभव पर हम भरोसा रखकर उस पर निर्भर हो जाते हैं। But the Christian life, the believer's life is should completely depend on God. लेकिन परमेश्वर के लोगों का, मसीहों का जीवन परमेश्वर पे भरोसा रखकर उस पे निर्भर होना चाहिए। Believer's life should completely depend on Him. एक विश्वासी का जीवन अपने यीशु मसीह पर निर्भर होना चाहिए। Yes, once again let me repeat this for somebody. मैं आपके लिए फिर से दोहरा दूं, Till now you completely depending on your intellectual. हो सकता है आज दिन तक आप अपनी बुद्धि पर सहारा ले रहे होंगे। Till today you are depending on your intellectual and experiences. हो सकता है आप अपने अनुभव पर भरोसा रख के उस पर निर्भर होंगे। But I want to tell you, पर मैं आपसे आज कहता हूं, from today onwards, आज से ही trust God केवल परमेश्वर पे भरोसा रखें and lean not on your own और understanding. अपनी बुद्धि का सहारा ना लें। Because people, those who trust their own intellectual, their own strategy and plan and purpose, जब हम मनुष्य होने के नाते अपनी उस मनुष्य की बुद्धि और उसकी समझ पर निर्भर हो जाते हैं, we face failures. तो कई बार हम असफलता से गुजरते हैं। Yes, many a times people they fail, believers they fail. Do you know why? कई बार विश्वासी भी असफलता से गुजरते हैं Because क्योंकि they trusted their own experiences. उन्होंने अपने अनुभव पे सहारा ले लिया था, They trusted their friends and their colleagues. उन्होंने अपने मित्रों का सहारा ले लिया था Trusted some finance company. और उन्होंने तो किसी आर्थिक मददगार का सहारा ले लिया था Trusted their past experiences. और अपने बीते काल के अनुभवों पर निर्भर थे। And that's why many times they faced failures in their lives. Excuse me, इसीलिए कई बार अपने जीवन में वो असफलता को देखते You हैं। know, but what the scripture says, लेकिन वचन क्या कहता है? that trust in the Lord परमेश्वर पे भरोसा रख, with all your heart
अपने संपूर्ण हृदय से, and lean not your own और understanding. अपनी समझ का सहारा ना लेना। And do you know what happens when we do this? और ऐसा करने से क्या होगा? Verse number 6 you can read. आइए वचन 6 पढ़ेंगे, इसके आगे जो It लिखा is है, written here, यहाँ यूं लिखता है God will make a way for you. कि तब परमेश्वर तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेंगे। Then God will make a straight path for you so that you can walk and get the success that God has bestowed for you. तब परमेश्वर तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, आगे वचन में लिखा है। And that's why, dear people of God, it is important for us to trust the triune और God. इसीलिए महत्वपूर्ण है कि अपने जीवित खुदावन पर हम नित्य भरोसा रखें, उसका ही सहारा लें। Don't trust any man. तो मनुष्य पर भरोसा रख के उस पर निर्भर ना हो Because जाए, the Bible says, क्योंकि बाइबल बताती है cursed is the man who trusts man. तो शापित है वो जिसका भरोसा मनुष्य पर है, But blessed are the people who trust God the Father. लेकिन धन्य है वो जिसका भरोसा यहोवा पर है। That's why, dear people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के we लोगों, need to learn and to develop this habit to trust God the Father each day. इसलिए आपको और मुझे सीखना है और अभ्यास करना है, प्रतिदिन अपने प्रभु पे भरोसा रखना, उस पर निर्भर होना। Who has saved you? किसने आपको उद्धार दिया? Who has delivered you? किसने आपको छुटकारा दिया? Yes, God the Father through उस Christ जीवित प्रभु ने, Jesus. परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। And that's why we need to trust Him और alone. इसीलिए हमारा संपूर्ण भरोसा निर्भरता उस पर है। When you read Isaiah chapter 12 verse number 2 और जब आप पढ़ेंगे यशाया नबी की पुस्तक और उसका अध्याय 12 and verse number 2, और उसके वचन 2 को, here the scripture says like और यहाँ पर this: कलाम यूं कहता है, Surely God is my salvation, I will trust Him and not be afraid. यशाया नबी की पुस्तक अध्याय 12 वचन 2 में लिखा है, परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा। Surely God is my salvation. निश्चय परमेश्वर यहोवा मेरा उद्धार है। Every individual who are listening to me, हरेक व्यक्ति जो आज मेरी सुन रहे हैं, if you believe that God has saved you, अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपको उद्धार दिया है, if you believe that God loves you, और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखते if you हैं, believe that Christ died for you, विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, if you believe that He buried and rose again third day for you, विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे और जीवित है, you should also believe on God, trust Him alone. और इसीलिए आपका भरोसा संपूर्ण रीति से अपने जीवित परमेश्वर पर हो और उस पे ही आप निर्भर पाए जाए, Not on any man, वो किसी मनुष्य पर नहीं, not on your own अपनी intellectual, खुद की समझ और सहारे बुद्धि not, पर अनुभव पर नहीं, on your ministerial experiences also. वो अपनी सेवकाई के अनुभव पर भी नहीं। No. ना, Trust God always. परमेश्वर पे भरोसा रखे हर समय, Trust Jesus always. यीशु पर भरोसा रखे हर समय। And what happens when you trust Jesus? और क्या होता है जब प्रभु पे भरोसा करते हैं? What happens when you trust Him alone? क्या होता है जब आप पूरी रीति से उस पर निर्भर हो जाते हैं? All sort of fear goes away from your life. आपके जीवन के हर एक डर और भय निकल जाएंगे, All sort of fear or anxiety goes away from हर एक your life. चिंताएं निकल जाएंगी। That's why we need to trust God. इसलिए आपको मुझे नित्य प्रभु पर निर्भर होकर उस पर भरोसा रखना है। Let us see what Isaiah chapter 26 verse 3 says. आइए एक और वचन को पढ़ेंगे, यशाया नबी की ही पुस्तक में अध्याय 26 में हम जाएंगे। Isaiah chapter 26 verse 3 says like this. और यशाया नबी की पुस्तक अध्याय 26 और वचन 3 कहता है, You know, you will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. यशाया नबी की पुस्तक अध्याय 26 वचन 3 कहता है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। Are you facing any kind of state of mind that there's no peace in your life? क्या आपका जो मन है वो विचलित है और आपकी शांति खो गई है? Seeing the problems that are surrounding you, उन समस्याओं से जब आप घिर जाते हैं तो क्या आप ऐसा ही महसूस करते or हैं? seeing any sort of problem that is beyond your strength? और या फिर कोई ऐसी चुनौती समस्या आपके सामने है जो आपकी सामर्थ से बाहर है? The Bible says trust God. बाइबल बताती है परमेश्वर पे भरोसा रख, Because people who trust God, क्योंकि जिसका भरोसा अपने जीवित परमेश्वर पर, God fills their heart by His
peace. कलाम कहता है सबसे पहले वो तेरे मन की रक्षा करेगा, अपनी शांति से तुझे भरेगा। And not only this, और ना केवल इतना, He will secure your mind, the peace which He has given in your mind. वो पूर्ण शांति के साथ अपनी तेरे सुरक्षा करेगा, He will protect you. वो तुझे सुरक्षित रखेगा अपनी शांति में। And this is the result to trusting God. और यही तो परिणाम है प्रभु पे भरोसा रखने का। So many times we trust so many other people, कई बार हम दूसरों पे और लोगों पे, मनुष्यों पे निर्भर हो जाते हैं, उन पे भरोसा कर लेते हैं, but not God. परंतु परमेश्वर पे भरोसा नहीं रख पाते। You know, sometimes seeing our problems, we very easily we depend on other कई friends बार हम and अपनी loved समस्याओं ones. से निकलने के लिए हम तुरंत ही लोगों का सहारा लेते हैं, उन पे निर्भर हो जाते But dear हैं। people of God, लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, this morning the Lord is pricking putting this in my heart to लेकिन आज tell इस you, प्रभु सुबह के समय मेरे हृदय में ये रख रहे हैं कि मैं आपसे कहूँ, trust God no matter हर what. समस्याओं के मध्य में, हर बातों के मध्य में केवल परमेश्वर पे भरोसा You रखें। know, for your family needs, for अपने परिवार की जरूरतों के लिए, your own needs, अपनी जरूरतों के लिए, for your financial breakthrough, अपने आर्थिक उस छुटकारे के लिए, for your loved ones to be saved, आपके प्रियों के उद्धार के लिए, for your children to be prospered and to have a bright future, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य, आशीष और संपन्नता के लिए, for your ministerial success, आपकी सेवकाई की सफलता के लिए, and even to go to heaven. और स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए Trust God always. केवल परमेश्वर पे सदा सर्वदा भरोसा रखें। This is what even the scripture says ahead, Isaiah chapter 26 verse 4. और आगे जब पढ़ेंगे शायद नबी की पुस्तक अध्याय 26 उसका वचन 4, Trust in the Lord forever, he says. लिखा है यहोवा पिता परमेश्वर पर सदा सर्वदा भरोसा रख, Trust in the Lord forever. सदा सर्वदा भरोसा रख परमेश्वर पे, Forever. सदा सर्वदा लिखा है। Not only Christmas to Christmas, केवल क्रिसमस पर क्रिसमस पे ही भरोसा नहीं करना है, not only on any crusade to crusade. ना ही केवल जब एक क्रूसेड और दूसरा क्रूसेड आए तभी भरोसा लाएंगे, No, forever. सदा सर्वदा भरोसा रख लिखा है। Always trust God. सदा सर्वदा अपने प्रभु परमेश्वर पे भरोसा, Always trust Lord, it is written. ओ सदा सर्वदा उस प्रभु पे भरोसा रख। Whenever it is written Lord, जब कभी लिखता है प्रभु, it means कहने का मतलब है it is indicating that Lord God Almighty, He has all the authority over everything. जब कहते हैं प्रभु, हम किसी को तो मतलब हम कह रहे हैं कि प्रभु तेरा ही सारा अधिकार मेरे ऊपर है। So that's why the Bible says we need to trust Lord God Almighty forever. इसीलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि सदा सर्वदा अपने प्रभु परमेश्वर पे भरोसा रख। Rehema Sakariandia. I'm seeing you, dear man of God. मैं आपको देख रहा हूँ मेरे प्रिय भाई, आप परमेश्वर के जन, You are serving Lord आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं and going through many difficult और आपकी situations, समय और परिस्थितियां आज बहुत कठिन, financial problems. और आर्थिक संकट है। Even other people, they betrayed you, they cheated on you. कुछ लोगों ने आपको धोखा भी दिया है। I want to tell you, मैं आपसे कहता हूँ trust God, trust Jesus. परमेश्वर पे, प्रभु यीशु मसीह पे आज भरोसा रखें। When you read John chapter 14 verse 1, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 14 वचन 1 को पढ़ेंगे। this is for you, dear man of God. मेरे भाई, मेरे परमेश्वर के जन, मैं आपके लिए वचन पढ़ रहा हूँ। My dear brother, man of God, this is for you. मेरे भाई परमेश्वर के जन, ये वचन आपके लिए पढ़ रहा हूँ, Especially for you. ये वचन आपके लिए ही आया है। John chapter 14 verse 1. आइए पढ़ेंगे यूहन्ना 14 वचन 1। Scripture says here like this. और परमेश्वर का कलाम यूहन्ना 14 और 1 में यूं कहता है, Do not let your hearts be troubled. हालेलुया। Do not let your hearts be troubled. You believe in God and believe also in me. Jesus तुम्हारा said. मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। Jesus said this. यीशु मसीह ने कहा, Let not your hearts be troubled. तुम्हारा मन हृदय व्याकुल ना हो। Dear man of God, मेरे प्रिय भाई परमेश्वर के जन, seeing this persecution and ups and downs and financial crisis, I say that let not your hearts be troubled. इस संकट और सखेती और आर्थिक मुसीबतों में और सारी बातों के मध्य में जिनसे आप आज गुजर रहे हैं, परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, प्रभु आपसे कहते हैं, मेरे बेटे तेरा मन व्याकुल ना हो। Believe in God. परमेश्वर पे विश्वास रख। Believe in me, Jesus said. यीशु पे विश्वास रख, प्रभु कहते What हैं। does it mean? क्या मतलब है इसका? The way you believed on God years back जिस प्रकार से आपने परमेश्वर पे पहले उन दिनों में भरोसा रखा था and started following Jesus, और यीशु के पीछे चलने लगे, and you saw many
many wonders and miracles and supernatural provisions for your life और and अपने जीवन families. में बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को, अद्भुत अलौकिक प्रबंध को आपने देखा है। Same God is available now. आज भी वो परमेश्वर उपलब्ध है। Yes, though you're going through ups and downs, हाँ, आपके जीवन में संकट तो है, though you're going through financial crisis and आर्थिक disease, मुसीबत और कुछ बीमारियां भी हैं, but God is watching. लेकिन परमेश्वर की दृष्टि आप पर बनी हुई God है। is looking at you. परमेश्वर आपको देख रहे He हैं is going to take you और out. वो आपको निकाल लेंगे। What He wants from you, आपसे वो क्या चाहते हैं just trust Him no matter कि आप what. परमेश्वर पे नित्य भरोसा रखें, Let not your heart be troubled, आपका हृदय व्याकुल ना हो। but instead what to do? उसके बजाय आप ये करिए, Believe God. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखें, Believe Jesus. यीशु पर विश्वास Because रखें only He can move. और ये जानिए कि केवल वही ये कर सकता है। Only He can move mountains from your life. आपके जीवन के पहाड़ों को यीशु ही डालेगा। Only Jesus Christ can crush those mountains standing before you. यीशु मसीह ही है जो आपके सामने खड़े हुए हर एक पहाड़ों को चकनाचूर कर You देगा। are feeling alone in your life. अगर आप अपने जीवन में अकेला महसूस You कर are रहे हैं feeling that what should I do next? और सोच रहे हैं मैं क्या करूं, You are seeing that your loved ones, they are leaving you one by one. और आपके प्रिय भी आपको छोड़ते जा रहे You हैं don't have even finance. और आर्थिक बातों में भी संकट है, You are living in far country, आप बड़े दूर देश में भी far हैं, away from the loved ones. अपने But प्रियों से अलग रहते हैं। I want to tell you मैं आपसे कहता हूँ that Jesus Christ is available for you वहां पर there. भी यीशु आपके निकट है। He is there for you, telling you, my daughter, tell me what can I do for you. यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं मेरी बेटी तू बोल मैं तेरे लिए क्या करूं, Let not your heart be मेरा troubled. हृदय व्याकुल ना हो, Trust me. मुझ पे विश्वास कर, I am there for you. मैं तेरे लिए हूँ, I will not leave you nor तुझे नहीं forsake you. छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। Hallelujah. हालेलुया, आमीन। Trust Jesus. यीशु पर विश्वास करें, No matter what. चाहे कुछ भी हो, Let not your heart be troubled. हमारा हृदय व्याकुल ना हो। Trust Jesus. यीशु पर भरोसा रखें, Do not trust your experiences. अपने अनुभव पर निर्भर होकर ना Do चलें, not trust your past experiences. अपने वो बीते हुए कल के अनुभवों पर निर्भर होकर अपना जीवन ना Do जिए not trust any friend or anyone. और किसी मित्र पर या किसी और लोगों पर इतना निर्भर न हो। You and me, we are called believers. आप और मैं विश्वासी कहलाते हैं। We will believe on God. आपको और मुझे निश्चय हर एक क्षण अपने प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करना। This is what the psalmist says in Psalms chapter 20 verse number 7. भजन का लिखने वाला इस रीति से कहता है अध्याय 20 और उसके वचन 7 में, Who wrote Psalms? किसने लिखा इस भजन की पुस्तक को? King David, हम जानते हैं दाऊद राजा ने। who experienced joy and sorrow both. हम जानते हैं कि दाऊद जो राजा था उसने बड़े आनंद को भी देखा और कई दुखों से भी गुजरा है। King David, who experienced facing Goliath and facing King Saul as well. वो दाऊद जिसने गोलियात का भी सामना किया और उस सौल राजा का भी सामना He किया went through all types of ups and और downs. कई प्रकार की परिस्थितियां उसके जीवन में आई And he's writing here, see और what, यहाँ पर अपने बातों को वो यूं लिखता है भजन की how पुस्तक में। beautifully he's writing, कितना खूबसूरत है ये वचन telling us something. और हमें कुछ सिखाता है। Psalms chapter 20 verse 7. भजन संहिता अध्याय 20 वचन 7, He says like that. Some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. आमीन। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम King लेंगे। David is writing this here. और यहाँ पे दाऊद राजा यूं लिखता है भजन में, Some trust in chariots, कुछ लोगों को रथों का भरोसा है, some in कुछ horses. लोगों को घोड़ों का भरोसा Do you है। know what it means? क्या मतलब है ऐसा कहने का? Chariots, it's a replica. It's telling the power of authority. ओ यहाँ पर जब रथों की बात की गई है मतलब वो एक बड़े अधिकार को दिखा रहा है। It is depending on the power that a man receives. सामर्थ और उस अधिकार उस संपन्नता को जो मनुष्य पाता है उसको रथ बताते हैं। And he's saying some in horses. और कुछ लोगों का भरोसा घोड़ों पर भी है। Horses, it denotes the might a man carries in his body. और घोड़े वो दर्शा रहे हैं कि वो सामर्थ जो मैं अपने शरीर में रखता हूँ। So we can say like this. तो हम यूं कह सकते A हैं man should not depend on his own intellectual and his own right that he has. अपने अधिकार अपनी बुद्धि और अपने बल पर मनुष्य को भरोसा नहीं रखना है Neither his good physique and how good and strong he और ना ही is. अपने उस शारीरिक बल पर निर्भर होना है। But a man should believe and trust Lord
God Almighty. लेकिन हमारा संपूर्ण भरोसा केवल अपने जीवित परमेश्वर पर होने पाए। That's why he says, और इसीलिए वो कहता है, he experienced all this in अपने his life. अनुभवों से उसने यहाँ पर गवाही दी है। The chariots and horses may fail, वो रथ आपको धोखा दे सकते हैं, वो घोड़े आपको धोखा दे but सकते हैं, God never fail you. लेकिन परमेश्वर आपको कभी नहीं धोखा देगा। The Father never ever fails his children. परमेश्वर अपने लोगों को कभी धोखा नहीं देता। I want to tell this to you, my dear मेरे brother. भाई, मैं आपसे कहता हूँ, You know, your friends may fail you. आपके मित्र आपको धोखा दे सकते हैं, Your loved ones may cheat you, आपके fail you. प्रिय लोग भी आपको धोखा देके छोड़ सकते Your हैं, finances may gone. आपकी आर्थिक बातें, धन संपत्ति जा सकती है कभी, Even your health may sometime become, lose. कई बार आप स्वास्थ्य को खो सकते हैं, But God आमेन। परंतु परमेश्वर never fail you. वो कभी आपको नहीं छोड़ता, आपको धोखा नहीं He देता। will neither leave you, nor he will forsake वो you, आपको ना छोड़ेगा ना त्यागेगा, nor he will fail you. ना आपको धोखा देके असफल करेगा। So what is better? तो क्या उत्तम है चुनाव करना, To trust chariots and horses or God? कि वो मैं रथों और घोड़ों का भरोसा करूं या अपने परमेश्वर का भरोसा What is करूं? better? क्या उत्तम होगा मेरे लिए, To trust financiers or to trust the God who provides कि supernatural? मैं धन संपत्ति वालों पे भरोसा करूं या अपने परमेश्वर पे भरोसा करूं? Trust God. परमेश्वर पे भरोसा करें, Trust God. परमेश्वर पे भाई भरोसा The करें। more you will trust God, जितना अधिक आप प्रभु परमेश्वर पे भरोसा the करते more you हैं, will see the hand of God moving in your lives. उतना अधिक आप परमेश्वर के हाथ को अपने जीवन में कार्य करता हुआ देखेंगे। This is daily practice. ये तो हर दिन का अभ्यास है, Trusting God is daily practice. हर दिन प्रभु पे भरोसा रखना एक अभ्यास है। Because we all face big problems in our हम lives. सब बड़े बड़ी समस्याओं को देखते हैं अपने जीवनों में। Sometimes we may share with our loved ones, or sometimes we cannot. कई बार हम लोगों को बता देते हैं, कई बार नहीं भी बताते, But tell it to God. परंतु मैं कहता हूँ केवल परमेश्वर को बता दीजिए, Tell it to Jesus today. यीशु को आज बता दीजिए Your problems, अपनी समस्याएं, about your issues, अपनी तकलीफें, tell it to Jesus today. यीशु को आज बता दीजिए। And when we tell it to जब हम Jesus, यीशु को बताएंगे, we are saying, हम कहेंगे, Jesus, I trust you, that's why I'm telling you. परमेश्वर यीशु मसीह में आप पे भरोसा करता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। I trust you, Jesus, that's why I'm sharing all my problems with प्रभु you. यीशु मसीह में आप पर भरोसा करता हूँ, इसलिए मैं अपनी समस्याओं और तकलीफों को आपसे बांटता हूँ। And since my Lord is the living God, और क्योंकि मेरा प्रभु तो जीवित प्रभु है, He hears my problems वो मेरी बातों को, मेरी समस्याओं को भी सुनता है so patiently. और धीरज से सुनेगा, So patiently He धीरज से मुझे hears सुनता है all my issues. सारी मेरी तकलीफों को। And not only this, और ना केवल वो सुनता He है, rescues. वो तो छुटकारा देता He है, rescues His children. छुटकारा देता है। So what is better? क्या उत्तम होगा, Trust Jesus or to trust man? यीशु पे भरोसा रखना या मनुष्य पे भरोसा रखना? Yes, trust Jesus. यीशु पे भरोसा रखे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। These people who trust man, क्योंकि जो लोग मनुष्य पे भरोसा रख के निर्भर हो जाते the हैं, Bible says, बाइबल बताती है, Proverbs chapter 29, verse number 25. आइए पढ़ेंगे नीति वचन की पुस्तक, उसका अध्याय 29 और उसका वचन 25 में। Proverbs chapter 29, verse number 25. आप हमारे साथ निकाल सकते हैं नीति वचन 29 वचन 25। Fear of man will prove to be a snare, but whoever trusts in the Lord is kept safe. लिखा है, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पिता परमेश्वर पर भरोसा रखता है वह ऊंचे स्थान पर बिठाया जाता है, चढ़ाया जाता है। The Bible says, बाइबल कहती है, whoever trusts in the Lord जितने भी परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं is kept safe, वो निश्चय सुरक्षित स्थान में बचा के रखे is जाएंगे, protected, वो हमेशा सुरक्षा से घिरे होंगे, surrounded by the angels. और सब दूतों से घिरे रहेंगे। But people who fear man, लेकिन जो मनुष्य पे भरोसा रखते हैं, मनुष्य से भय खाते हैं, it says, कहता है वचन, it is proved snare for their feet. वो मनुष्य के भय, वो मनुष्य का पे भरोसा रखना उनके लिए एक फंदा बन जाएगा उनके पैरों के So I लिए। want to ask you once again, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, what is better? क्या आपके लिए उत्तम है To trust man कि आप मनुष्य पे भरोसा रख के जिए, or to trust कि Jesus? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रख के जिए? Yes, I will trust Jesus no matter मैं तो what. हमेशा प्रभु यीशु मसीह पर ही भरोसा रखूंगा, चाहे कुछ भी हो। No matter what, trust Jesus. कुछ भी क्यों ना हो, प्रभु यीशु पे भरोसा रखे। Second thing, दूसरी बात, abide in Him. यीशु में बने रहिए, Abide in Him. यीशु में बने रहिए। The Lord has put these three words in my heart. जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये 3 शब्द
शब्दों को प्रभु ने मेरे मन में डाला है। First, trust Jesus. पहली बात जो मैंने आपको बताई, प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा रखिए। Just I have explained. जैसे मैंने आपको पूरी रीति से अभी समझाया है। Trust Jesus. पहली बात जो मैंने समझाई है, प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा रखिए, Trust Him. उस पे भरोसा रखिए, विश्वास करिए। Second thing, दूसरी बात, abide in Him. यीशु मसीह में ही बने रहिए। Abide in Him. यीशु मसीह में बने रहिए। What does it mean to abide in Him? क्या मतलब है यीशु मसीह में बने रहने का? Mean to say stand firm in the Lord. वो कहने का मतलब है यीशु मसीह में दृढ़ खड़े रहिए। When facing turmoil, storms, and whatever type of चाहे आपके situation, जीवन में कोई भी तूफान क्यों ना उठा हो, any sort of loss, किसी प्रकार का नुकसान भी क्यों ना any sort हो, of failure, किसी प्रकार की सफलता भी आज क्यों ना हो, Jesus, who is the strong rock, यीशु मसीह जो मेरी सनातन चट्टान we है, should stand on Him. ओ मैं उस पे ही बना रहूंगा। No, I'm not going to move. मैं नहीं हिलूंगा। Even if people will push me and pull अगर लोग me, मुझे धक्का भी मारे, खींचने का भी प्रयास mean to say करें, even people will cheat me or betray me or do whatever things against me, अगर लोग मेरे विरोध में भी हो जाए, मुझे धोखा भी दे दे, मुझे नीचे भी गिराना चाहे, I will stand firm on Jesus. लेकिन फिर भी मैं यीशु मसीह पे बना रहूंगा, खड़ा रहूंगा। Abide in Him. यीशु में ही बना रहूंगा। Abide in Him. यीशु मसीह में बना रहूंगा। Abide in Him. यीशु मसीह में बने रहिए। John chapter 15 verse 5 says like this. आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 15 और वचन 5। John, Gospel according to John chapter 15 verse number 5 says this. यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 वचन 5 में यूं लिखा है, It says here like this. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him, he bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. यूहन्ना उसका 15:5 कहता है, यीशु ने कहा, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। Underline this. मैं चाहूंगा आप इसे रेखांकित करें आज इस सुबह। Jesus Christ is saying, यीशु आपसे आज कह रहे हैं, for apart from me, you can do nothing. तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। In other words, दूसरे शब्दों में कहूं, without Jesus, you and me, we can do nothing. बिना यीशु के आप और मैं कुछ नहीं कर पाएंगे। Yes, without Jesus Christ, who is our firm rock, वो यीशु जो आपकी और मेरी सदाकाल की सनातन चट्टान है, who दृढ़ is our चट्टान है, everlasting rock, सदाकाल की दृढ़ चट्टान है, without Him, उसके बिना you and me, we can do nothing. आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। That is why और इसलिए we need to abide in Him. उसमें बने रहने बहुत अनिवार्य है। It is better to be abide in Christ Jesus. यीशु में बना रहना ही सर्वोत्तम It है। is better to abide in Jesus यीशु में ही बना रहना सर्वोत्तम है, than to abide in this world. ताकि इसके बजाय कि मैं संसार में बना रहूं। World is shaking, perishing. और हम जानते हैं कि ये पूरा संसार जो है वो तो हिल रहा है और कभी भी ध्वस्त हो जाएगा। Even financial condition of this world also is not हम good. जानते हैं कि आर्थिक स्थिति भी इस संसार की अब बिगड़ चुकी है। All places earthquake, हम जानते हैं नाना प्रकार के भूकंप को हम देखते हैं, pandemic and these and that, so नाना many प्रकार की things. बीमारियों को, युद्ध को हम देख रहे हैं। Only one place that is unshakable. एक ही स्थान है जो कभी नहीं हिलता। One place, एक ही स्थान, unshakable place. एक ऐसा स्थान जो कभी हिलने का नहीं, डिगने का नहीं, Everlasting rock, वो सनातन चट्टान whose name is Jesus जिसका नाम Christ. यीशु मसीह है। And that's why we need to abide in और Him. इसीलिए हमें उसमें ही बने रहने की We need आवश्यकता to है। stand firm in Him. उसमें दृढ़ खड़े रहिए, No matter what I face. चाहे कोई भी परिस्थिति मेरे सामने क्यों ना हो। If I am abiding in अगर Jesus, मैं यीशु में बना हूँ, my Jesus can take control over everything. तो मेरा यीशु सारी बातों में नियंत्रण लेने के लिए योग्य से बढ़कर Yes, है। He's more than able to rescue me, to वो provide मुझे for me, छुटकारा देने के लिए, मेरे लिए प्रबंध करने के लिए योग्य से बढ़कर है, bless me. मुझे आशीषित करने के लिए योग्य से Without बढ़कर Him, है। I can do nothing. यीशु के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। Without Jesus, you and me, we can do यीशु nothing. के बिना आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। Jesus illustrated this in verse number 1. Verse number 4. यीशु ने इस बात को यहाँ पर वचन 4 में इस रीति से बखान किया है, Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless
it abides in the vine. यूहन्ना So 15 neither can you unless you abide in me. यूहन्ना 15:4 में यीशु मसीह ने इस बात को इस रीति से वर्णन किया है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसा डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। So neither can you unless you abide in me, Jesus said. तुम भी नहीं फल सकते अगर मुझ में ना बने रहो, यीशु कहते हैं। You know, you and me, we cannot be fruitful, we cannot receive the genuine blessing of heaven if you and me, we cannot abide in Lord Jesus Christ. आप और मैं फलवंत तब तक नहीं हो सकते जब तक आप और मैं यीशु मसीह में बने ना रहें। We all who are called believers, हम जो विश्वासी कहलाते we हैं, need to learn to abide in Christ हमें Jesus each सीखना है day. हर एक क्षण हर एक दिन यीशु में बने रहना। Seeing the problem, some people, they leave the place, कई लोग समस्या को देखकर अपने जगह को छोड़ देते हैं, leave the position. अपनी उस स्थान को, पोजीशन को छोड़ देते हैं। In other words, अगर दूसरे शब्दों में कहूँ, they stop believing Jesus. मतलब यीशु पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। They stop believing Jesus. यीशु में बने रहना, उस पर विश्वास करना वो छोड़ देते They हैं। stop abiding in Jesus यीशु में बने रहना छोड़ देते हैं because they're facing, oppositions, they're facing persecutions, or they're facing loss. अगर सताव या नुकसान या किसी भी प्रकार की समस्या आ गई तो वो यीशु में बने नहीं रहते, उस स्थान को छोड़ देते हैं, अपने विश्वास को त्याग देते But हैं। what Jesus Christ is पर saying, यीशु मसीह क्या कहते हैं? if you will do this, अगर तुम ऐसा करो, mean to say, कहने का मतलब, let me tell you one thing, मैं कहना चाहता हूं एक बात, without me you can do nothing. यीशु कहते हैं मैं तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकती। If you leave this place, if you go somewhere else without me, अगर तुम मेरे बिना जीना का चुनाव कर लो, yes, if you choose to live without me, अगर तुम मेरे बिना जीने का चुनाव कर लो, if you choose to get the blessing from this world without me, अगर तुम ये सोचो कि तुम संसार से आशीषित हो जाओगे नहीं। और मेरे बिना रह सकते you हो, will be failed one day. तो तुम एक दिन निश्चय असफल होगे। But Jesus Christ is saying, परंतु यीशु कहते in हैं all sort of situations, हर परिस्थितियों के मध्य abide में in me, मुझ में बने रहो, because I am the main source of all blessings. क्योंकि यीशु मसीह सारे आशीषों का स्रोत है। Without me you can do nothing. यीशु ने कहा तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। In order to abide in Christ, यीशु मसीह में बने रहने के लिए need to abide in His words. आपको उसके वचन में बना रहना होगा। In order to abide in Christ, यीशु मसीह में बने रहने के लिए need to abide in His words. आपको उसके वचन में बना रहना होगा। John chapter 8 verse 31 says like this. यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 और वचन उसका 31. John chapter 31 यूं कहता Yeah, है। John chapter 8 verse 31 says like this. आइए हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 8 और उसका वचन 31 पढ़ेंगे। And here it is written, और यहाँ यूं लिखा है, so Jesus was saying to those Jews who had believed him, if you continue in my word, then you are truly disciples of mine. यूहन्ना 8:31 में लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। In order to abide in Christ Jesus, यीशु मसीह में बने रहने के लिए, in order to be called strong believers, यीशु मसीह में मजबूत विश्वासी होने के लिए what to do? क्या करना होगा? To abide in His teachings, यीशु मसीह के वचन पर बना रहना to होगा, abide in His words, in His teachings. उसकी शिक्षाओं में बना, उसके वचन में बना रहना होगा। A person, if he or she is not abiding or not remaining in his teachings, अगर प्रभु यीशु मसीह में, उसकी शिक्षाओं में, उसके वचन में आप नहीं बने हुए, he or she is not a true disciple of तो Christ आप प्रभु Jesus. यीशु के चेले नहीं हो, He or she is not a true believers of Christ Jesus. वो यीशु मसीह के विश्वासी नहीं हैं। I see so many so-called Christians, so-called believers. मैं से बहुत सारे सिर्फ नामधारी मसीहों को जानता हूँ, They go to church Sunday to वो Sunday. चाहते हैं कलीसिया हर रविवार, They go to prayer meetings as well. प्रार्थना सभाओं में भी दिखते हैं, But they do certain things which I feel God doesn't like. लेकिन वो ऐसी बातों में कई बार अपने आप को दे देते हैं और करते हैं जो प्रभु पसंद नहीं You करता। know, sometimes some believers they compromise
with this world. विश्वासी होने के बावजूद संसार की बातों से वो समझौता कर बैठते हैं, You know, to save their jobs, to save their business, ताकि अपनी नौकरी, अपने व्यवसाय को बचा सके, or to look good before worldly people. ताकि संसारिक लोगों के सामने वो अपनी छवि को बरकरार रख सके और उनके सामने अच्छा बन They सके। do certain things which God prohibited. और ऐसी बातें जो बिल्कुल बाइबल और परमेश्वर के द्वारा मना की गई है उन्हें कर जाते हैं। Do you know why they do this? क्यों वो ऐसा करते हैं? Because क्योंकि they are not remaining in the teachings and in his words. क्योंकि वो यीशु की शिक्षा और उसके वचन पर बने नहीं हुए हैं। Let me tell you once again, मैं कहना चाहता हूँ फिर से, why some believers they are compromising with this word. क्यों वो समझौता कर बैठते हैं संसार में लोग? Because they are not abiding in the teachings of Jesus Christ or in his words, क्योंकि वो living words. यीशु मसीह में नहीं बने हुए और ना उसके वचन में बने हुए हैं। And for such people the Bible says, और ऐसे लोगों के लिए बाइबल बताती है, 2 John chapter 1 verse 9. आइए हम पढ़ेंगे दूसरा यूहन्ना और उसका वचन, 2 John chapter 1 verse number 9. दूसरा यूहन्ना अध्याय 1 और वचन 9 को हम पढ़ लेते हैं। 2 John chapter 1 verse 9 says like this. और दूसरा यूहन्ना वचन 1 और उसका अध्याय 1 और वचन 9 कहता है, Anyone who goes too far and does not abide in the teaching of Christ does not have God. The one who abides in the teaching, he has both the Father and the Son. आमेन, हालेलुया। दूसरा यूहन्ना की पत्री अध्याय 1 और वचन 9 में यहाँ पर यूं लिखा है, जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। Such men, so-called Christians and believers, they have gone too far from God. ऐसे लोग जो मसीह की शिक्षा से भी, वचन से भी आगे बढ़ के जी रहे हैं, They are not abiding in Jesus. वो यीशु में नहीं बने हुए, कलाम कहता है। Abiding in Jesus means Jesus and you in same place. मतलब यीशु में बने रहने का मतलब है, जहां यीशु है वहां मैं हूँ, Where Jesus is, there I am. जहां मेरा यीशु है वही मैं हूँ, And I'm abiding there. और मैं उसमें ही बना हूँ। See, you have seen the tree, क्या आपने एक वृक्ष को देखा है? and the tree has big trunk, और उस जो पेड़ की जो शाखा होती है वो कितनी बड़ी होती है, has many branches as well. और कई डालियां उससे निकलती हैं। So each branches is attached with the trunk, और हर एक डालियां उस शाखा से जुड़ी हैं, and that's why it's fruitful. It's green. और इसीलिए वो डालियां फलती हैं, हरी भरी Have होती you हैं। ever seen any tree? The branches is somewhere else and telling, no, I am going to be fruitful and still remain green, you know, departing from the trunk of क्या tree. ऐसा हो सकता है कि वृक्ष की शाखा को छोड़कर कोई डाली अलग स्थान में पहुंच जाए और बोले मैं यहाँ फलूंगी? ऐसा नहीं हो सकता, Cannot be done. ऐसा हो ही नहीं सकता, It is impossible. ये असंभव बात है। And the same way, उसी रीति से if I'm saying that I am abiding in Christ Jesus, कि मैं यीशु में बना हूँ, अगर मैं कहता and हूँ Christ is abiding in me, और यीशु मुझ में बने हुए that हैं, is Christ Jesus and we are in same place. मतलब मैं और मेरा यीशु एक ही स्थान में And है। that's why Jesus said, और इसलिए यीशु ने कहा, every branch who is not in me हर एक वो डाली जो मुझ में नहीं बनी हुई cannot be fruitful. वो फलवंत नहीं हो सकती, Cannot be fruitful. वो फल नहीं ला Let me सकती। read this once again for you. एक बार फिर से कहता हूँ, He says, यीशु ने कहा, abide in me and I in you. मुझ में बने रहो और मैं तुम में, As the branches cannot bear fruit of itself क्योंकि डालियां खुद से फलवंत नहीं होती unless it abides in the vine. जब तक कि वो उस शाखा से, डाल से ना बनी रहे। The vine and the branches are the same place. वो डाली डाल से जब तक ना जुड़ी रहे, एक ही स्थान में ना पाए जाए, Same way, उसी रीति से Jesus and I. यीशु और मैं, If I'm saying I'm abiding in Jesus, अगर मैं कहता हूँ मैं यीशु में हूँ, so Jesus and I should be in one place. तो मैं और यीशु एक साथ हैं, One place. एक स्थान में जुड़े हुए हैं। Sadly, पर दुख की बात है, so many so-called Christians and कितने believers, सारे मसीही लोग जो मसीह कहला तो रहे हैं, unknowingly, शायद वो जानबूझकर या अनजाने में, unknowingly, जानबूझकर या अनजाने they में are doing so many things. ऐसी बातों को कर रहे हैं। Why they are doing? क्यों करते हैं? Because they are actually not abiding in Christ. क्योंकि वास्तविकता में वो यीशु में बने नहीं हुए, They are not abiding in His teachings. यीशु की शिक्षाओं में नहीं बने हुए, They are not abiding in His words. यीशु के वचन में नहीं बने हुए, And sadly, और इसलिए दुखद है they are not bringing fruit. वो फलवंत नहीं हो सकते।
And if you want to know the result of such people, और अगर आप ऐसे लोगों का परिणाम जानना चाहते you हैं can read the whole chapter of John chapter 15. तो आप निश्चय ही यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके अध्याय 15 को पढ़िएगा। It says, बाइबल बताती है for such branches, ऐसी डालियों का क्या होगा, they will put into the वो fire. तो आग में झोंक दी जाएंगी, They will put into the fire. वो तो आग में झोंक दी जाएंगी, They will be burned. वो सत्यानाश हो जाएंगी। But what if you and me, we will abide in Christ लेकिन always? क्या होगा जब आप और मैं यीशु में सदैव बने रहें? What will be the result if you and me, we will remain faithful in Christ? परिणाम क्या होगा यीशु मसीह में विश्वास योग्यता के साथ बने रहने का? John chapter 15 verse 7. उसी यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 उसका वचन 7 कहता है। John chapter 15 verse 7. आइए पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 उसका वचन 7। John chapter 15 verse 7 says like this. और यहाँ यूं लिखा है, If you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it will be done for you. आमीन। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। If the Bible says, यदि लिखा है, the Bible says if यदि है यहाँ पर I वचन। need to check myself मुझे जांचना है मुझे खुद को, whether I am abiding in Christ क्या or मैं not. मेरे यीशु में बना हूँ? We all need to check आइए ourselves. हमारे एक प्रत्येक अपने आप को जांचे आज इस सुबह, Are we really abiding in Christ? क्या हम यीशु में सच में बने हुए हैं? Because the Bible says, क्योंकि बाइबल मुझे बता रही है, and the scripture starts like this. वचन यूं शुरू होता है, If यदि you abide in me, Jesus said, यीशु ने कहा यदि तुम मुझ में बने रहो and my words abide और in you, मेरा वचन तुम में बना and the रहे, result is, तो परिणाम ये होगा, whatever you wish, it will be done for जो you. कुछ तुम चाहोगे मैं तुम्हारे लिए हो जाएगा, Whatever you wish, it will be done जो for कुछ तुम you. चाहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। This is the result, to abide in ये Christ. परिणाम है यीशु मसीह में बने रहने का। Dear people of God, हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, trust, यीशु पे विश्वास रखें, abide in Him. यीशु में बने रहें, Trust Jesus, यीशु में विश्वास करें, abide in Him. यीशु में बने रहें। If you trust Jesus, अगर आप यीशु में विश्वास करेंगे, Jesus gives you peace. यीशु आपको शांति देते हैं, Jesus removes all sort of fear from your आपके heart. जीवन से हर एक डर को हटा देंगे। Trust Jesus forever. यीशु पर सदा सर्वदा भरोसा रखें, Trust Jesus for everything. हर बात के लिए भरोसा रखें, Abide Jesus always. यीशु में सदैव बने रहें, And the result is, और परिणाम ये होगा whatever you will wish कि जो कुछ तुम चाहो will be done. यीशु ने कहा तुम्हारे लिए हो जाएगा, Will be done for you. तुम्हारे लिए हो जाएगा। Dear people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के I लोग, firmly believe मैं आपसे कहता हूँ that you have been blessed. कि आप आशीषित हुए। I firmly believe मैं निश्चय जानता हूँ your hearts have been pricked. कि आपके हृदय स्पर्श किए गए हैं। The last one which I wanted to share with you, जो आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता था, that is obey. आज्ञाकारिता रहना। The Lord is stopping me here. परमेश्वर लेकिन मुझे यहाँ पे रोकने के लिए कह रहे I'm हैं। going to continue with it next Sunday. आने वाले रविवार को पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करेंगे तो मैं इसे जरूर बांटूंगा, Because obedience is a very, क्योंकि great teaching. आज्ञाकारिता एक बड़ा शिक्षा है। I don't want to end this so quickly without telling you the क्योंकि मैं इसे इतनी main जल्दबाजी things. में नहीं शुरू करके खत्म करना That's चाहता। why I want to continue this sermon next Sunday as well. तो प्रभु के अगुवाई में मैं आने वाले रविवार को भी इस सरमन को आगे बढ़ाऊंगा। But before end this sermon, इससे पहले कि हम समाप्त करें, I want to tell you, मैं आपसे कहता हूँ obeying Jesus is also very important. यीशु की आज्ञा मानना बहुत महत्वपूर्ण है, And the defeated enemy doesn't want you to do that. और हारा हुआ शैतान नहीं चाहता कि आप ऐसा करें। From beginning, शुरुआत से ही, from Genesis, वो उस उत्पत्ति से ही नहीं he चाहता। doesn't want the children of God to obey God. उत्पत्ति से ही हारे हुए शैतान की ये मर्जी है कि हम अनाज्ञाकारी रहें। Till now, आज तक he doesn't want any of the children of God should obey वो God. हारा हुआ शैतान चाहता है कि हर एक विश्वासी अनाज्ञाकारी हो जाए, And that is the biggest sin. और वो सबसे बड़ा एक पाप है, That is the big challenge every believer face, और हर एक वो चुनौती है जो हम सामना करते हैं, to obey God every परमेश्वर की day. आज्ञा को हर दिन मानना। Dear people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के next लोग, Sunday we are going to continue और this. आने वाले रविवार को हम इसमें आगे बात Please do करेंगे, join with तो us. जरूर हमारे साथ आप जुड़िए। May the Lord bless you. Let's pray and declare the blessing over you. आइए परमेश्वर के आशीर्वाद की हम घोषणा करेंगे। Lord, our Father, we love you, we praise you, we honor you. पिता, हम आपको सारी महिमा, सारा आदर, सारा जलाल देते हैं। Thank you, Lord, for reminding us once again in this blessed day, पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने सुंदर दिन में हमें इस बात को in स्मरण this दिलाया, new month, इस नए महीने में, that Lord, how important it is to trust you all the कि time, पिता ये कितना जरूरी है कि हम आप पर भरोसा रखें, आप पर ईमान लाएं, to abide in you and your word, my और आप Jesus. पर, आपके वचन पर, आपकी शिक्षाओं पर बने रहें। And you are telling us this morning और आज की सुबह आप
हमसे इस बात को कह रहे हैं that if you trust me, और यदि तुम मुझ पर विश्वास if करते you हो, abide in me and in my word, यदि तुम मेरी शिक्षाओं पर और मेरे वचन पर बने रहते हो, मुझ पर बने रहते हो, ask what you want. तो जो कुछ तुम चाहो मांगो, Ask right now, इसी समय मांगो, and it will be done for you. और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। It will be done for you. वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। My dear sister, मेरी प्रिय बहन, it will be done for you in the name of Jesus. यीशु के नाम से ये आपके लिए हो My dear जाएगा। brother, मेरे प्रिय भाई, it will be done for you in यीशु नासरी के नाम से आपके लिए हो जाएगा। the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से, Because it is His promise, क्योंकि ये तो उसकी प्रतिज्ञा है, not the promise of any man, किसी मनुष्य की प्रतिज्ञा नहीं that है it will fail. कि असफल हो But जाए, it's a promise of God. परंतु ये तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा And है। once He has said this, और एक बार उसने जो कह दिया He will do वो it. करेगा, He'll do वो it. पक्का करेगा, Because He's an unchanging God. क्योंकि वो तो कभी भी ना बदलने वाला He's परमेश्वर the है। same yesterday, today, and वो forever. तो कल आज और युगानुयुग एक सा है। We trust you, Lord. हम प्रभु आप पर ईमान In the लाते midst of हैं। all our struggles and challenges and storms, हमारे जीवन के एक संघर्षों, संकटों और सताओं के दरमियान Lord, we trust you. पिता हम आप पर भरोसा करते You हैं। are an everlasting rock, living rock, हमारी सनातन की चट्टान है, unshakable rock. ऐसी चट्टान जो कभी भी टलने का नहीं। Holy Spirit, help each one of us पवित्र आत्मा हमें से प्रत्येक की मदद करिए abide in my Jesus, कि हम प्रभु यीशु मसीह आप में बने to रहें, abide in your word आपके वचनों में बने रहें 24/7, 24 घंटों 7 दिन, all the days of our life, हमारे जीवन के हर एक समयों में, that our lives become a pleasant and a fragrant sacrifice for you, my पिता Lord. परमेश्वर हमारा जीवन आपको सुगंधदायक सुगंध के नाई भावता हुआ आप उसको ग्रहण कर पाए। Lord Jesus, we love you. प्रभु यीशु मसीह हम आपसे बहुत प्यार करते Thank you for talking with us, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा आपने हमसे बोला बातचीत Thank you किया। for your presence. धन्यवाद आपकी उपस्थिति के We लिए। give you all glory, honor, and हम आपको praise. इस सारी महिमा सारा आदर देते In हैं। Jesus' name we pray. यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन आमेन। Now receive the blessings of God. आइए खुदावन के आशीषों को हम ग्रहण करें। May the Lord bless you and keep you. परमेश्वर पिता में आशीष दे और हमारी रक्षा करें। May the Lord make his face to shine upon परमेश्वर you पिता अपने मुख का प्रकाश हमें से प्रत्येक and पर be चमकाए gracious to you. और हम पर अनुग्रह करें। May the Lord lift up his countenance upon परमेश्वर you पिता अपना मुख हमारी ओर and करें give you his peace. और हमें अपनी शांति और तसल्ली In Jesus' प्रभु name. यीशु के नाम से। Amen. आमेन Amen. 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 Hallelujah. हालेलुया। Praise the की Lord. स्तुति हो। Dear people of God, फिर भी परमेश्वर के लोगों, if you have truly blessed this अगर आप morning, निश्चय इस सुबह के समय आशीषित हुए हैं and you know, if you know any one of your loved ones or friends or family members who are going through difficult अगर किसी भी ऐसे situations, व्यक्ति को आप जानते हैं अपने जीवन में जो आज कठिनाइयों या दुख में है living a hopeless life, या आशा रहित जीवन जी रहा है, but they have desire to grow in the Lord, लेकिन उनके अंदर ये इच्छा है कि वो प्रभु में बढ़ना चाहते I would like to request you, हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा please share this message with them आप इस संदेश को उनके साथ बांट सकते हैं so that they can hear it. ताकि प्रभु के वचन को सुन सके The faith should develop in their और उनका hearts विश्वास बढ़ जाए and they may come closer to और वो God. यीशु प्रभु के निकट And by आने doing पाए। this, और ऐसा करके that will be a little contribution from your side to our ministry, इस सेवा के लिए आप अपना योगदान दे सकते हैं and God will surely और reward you. निश्चय खुदा आपको इसका प्रतिफल देंगे। We are going to meet with you next Sunday sharp 8:30. और आने वाले रविवार को फिर आपसे मुलाकात होगी I am going to continue this और message. इस संदेश को आगे लेके जाएंगे। May God bless you. प्रभु आप सबको बहुत ताज से आशीष दे। थैंक यू सो मच।